Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है कि वहां के जो एम्प्लॉय हैं वर्क प्लेस पे, यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो वहां पर सेटिस्फाइड भी हैं या नहीं है। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो अपने पोटेंशियल पर काम कर पाएंगे, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दे रहे हैं, परफॉर्मेंस बेहतर देंगे तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे ही होंगे। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, यानी कि जो लगातार आगे बढ़ रही हैं, वो एक फीडबैक लेती हैं। क्यों? ताकि वो जान सके क्या दिक्कतें आ रही हैं एम्प्लॉयज को। वो जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉय कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, एक कंपनी में काम करते हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से फील कर रहा है। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस मेक एफर्ट्स टू ऑब्टेन रेगुलर फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर, उनके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, उनके रिगार्डिंग एक फीडबैक ली जाती है एम्प्लॉयज की तरफ से। एंड फर्दर ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, यानी कि जो फीडबैक है वो बेसिकली क्या है कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना कि एम्प्लॉय को किस तरह से फील हो रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, ये फॉर्मल चैनल में भी ली जा सकती है एंड इनफॉर्मल चैनल में भी ली जा सकती है। ठीक है, सो जो भी आपको लगते हैं फैक्टर्स हो सकते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज का क्या एटीट्यूड है, उनके रिगार्डिंग एम्प्लॉयज के मन में कितना सेटिस्फेक्शन है, इस चीज को हम डिफरेंट वे से गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इस चीज के रिगार्डिंग, एंड दैट कुड बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो फॉर्मल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से कलेक्ट की जाती है, जैसे आप कोई क्वेश्चनियर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्वेश्चंस कुछ सिलेक्ट किए एंड उन क्वेश्चंस को आप यूनिफॉर्मली सभी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ताकि आप उनके व्यूज को जान पाएं, बेसिकली उन्हें किस तरह से फील होता है उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, एंड अल्टीमेटली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, यानी कोई गेम के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू, फर्दर कोई सुजेशन स्कीम हो सकती है जहां पर आप एम्प्लॉय से सुजेशन ले रहे हैं एंड अल्टीमेटली आप उस सुजेशन के थ्रू भी एम्प्लॉय का फीडबैक ले पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज अ फॉर्मल लेवल इंफॉर्मेशन। एंड इनफॉर्मल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर कर पाएंगे, दैट इज अ डिस्कशंस विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू, या फिर जो उनके मैनेजर्स हैं, जो उनके सुपीरियर्स हैं, ठीक है, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके थ्रू आप बेसिकली जो बिहेवियर पैटर्न है एम्प्लॉय का उसके बारे में जान सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, किस चीज़ के रिगार्डिंग वो फ्री फील कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट के लिए ये फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि सिंपली फीडबैक लिया एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आप फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक के ऊपर काम भी करना है, उस फीडबैक के ऊपर मैनेजमेंट ने काम भी करना है, यानी कि मैनेजमेंट बेसिकली ये जानना चाहती है कि एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड एक बार आपके पास फीडबैक आ जाएगी तो आप फीडबैक के हिसाब से जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो ले सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि अल्टीमेटली जो
एम्प्लॉय हैं वर्क प्लेस पर वो सेटिस्फैक्टरी काम कर सकें, सेटिस्फैक्टरी उन्हें पोजीशन लगेगी तो अल्टीमेटली वो बेहतर वे में ज़्यादा काम कर पाएंगे एंड बेहतर वे में अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके तो इसमें बात आती है रिगार्डिंग द फीडबैक थ्रू द क्लाइमेटिक सर्वे। अब क्लाइमेटिक सर्वे होता क्या है? क्लाइमेटिक सर्वे होता क्या है, यानी कि जिस आप क्लाइमेट में, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके केस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय का परसेप्शन जानना चाहती है कि एम्प्लॉय किस तरह से सोच रहा है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्टिकुलर उस क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, जो भी क्लाइमेट है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में क्या सोचता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही शक्तिशाली एक तरीका है जिसके थ्रू आप फीडबैक ले सकते हैं एम्प्लॉयज से, ठीक है, जिसे आप एक फीडबैक लिख सकते हैं एम्प्लॉय से। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है या फिर हम कह लें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज को डिजाइन करते हैं, यानी कि चाहे क्वेश्चनर डिजाइन करने हैं, चाहे उनको एग्जीक्यूट करना है, चाहे फर्दर जो भी रिजल्ट है उन्हें टैबुलेट करना है, उन्हें इकट्ठा करना है एंड रिजल्ट के फॉर्म में उन्हें प्रेजेंट करना है। इस तरीके का काम है एचआरडी या फिर एचआरएम का काम है। ओके तो टिपिकली अगर हम देखें एक क्लाइमेट सर्वे में हम 9 तरह के यहाँ पर पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है, जो एक टिपिकल सर्वे में कवर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। अब आप इस तरह से सोचिए, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एम्प्लॉय किस तरह से फील कर रहा है, एम्प्लॉय किस तरह से फील कर रहा है कि ग्रुप्स को लेकर, रूल्स रेगुलेशंस को लेकर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल कैसा है, फर्दर डेलीगेशन या फिर अथॉरिटी जो है वो किस तरह से है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है कंपनी का वो किस तरह से, उसके बारे में एम्प्लॉय की क्या फीलिंग है उसके बारे में हम यहां पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड इट इज रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है, ठीक है, उसके ऊपर एक मैनेजर है, एक सुपीरियर है, तो वो काम कर रहा है, लेकिन बीइंग हिज ओन बॉस उसकी खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसका खुद का भी कुछ रोल है। क्या उसे उस चीज के बारे में क्लैरिटी है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है, क्या वो अपना खुद का बॉस है, तो उस चीज के रिगार्डिंग में उसकी क्या फीलिंग है उनके बारे में जानते हैं। देन इट इज रिगार्डिंग द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आप एक बेहतर जॉब में काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप स्किलफुल काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या फीलिंग है कि क्या आपको प्रॉपरली यहां पर कंपनसेट किया जा रहा है, प्रॉपरली क्या कंपनसेट किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग है। फर्दर पनिशमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग एंड पेमेंट एंड प्रमोशन सिस्टम के रिगार्डिंग एम्प्लॉय का क्या फीलिंग है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ओके देन इट इज रिगार्डिंग द रिस्क। तो अगर यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय से कि चैलेंज इन द जॉब क्या है, क्या रिस्कीनेस उसे लगती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उस रिस्क के साथ रिलेटेड है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वार्मथ इज बेसिकली रिगार्डिंग की एम्प्लॉय की क्या फीलिंग है रिगार्डिंग द फेलोशिप, यानी कि जो इनफॉर्मल सपोर्टिंग कल्चर है उसके रिगार्डिंग, सपोर्टिंग ग्रुप्स के रिगार्डिंग उसकी क्या फीलिंग्स है। देन इट इज रिगार्डिंग द सपोर्ट, रिगार्डिंग द सपोर्ट यानी कि उसे कैसा लगता है कि जो मैनेजर्स हैं वो हेल्पफुल हैं या नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयज ग्रुप में, जनरली जो एम्प्लॉयज हैं किसी टीम में या ग्रुप में ही काम करते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें उनकी क्या फीलिंग है, क्या उन्हें सपोर्ट अवेलेबल है। फर्दर उन्हें हायरार्की में, यानी कि अबव द हायरार्की एंड बिलो द हायरार्की क्या उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, उस चीज के रिगार्डिंग यहां पर उनसे जानने की कोशिश की जाती है। देन इट इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स यानी कि जो भी आपके इम्प्लिसिट या फिर जो आपके एक्सप्लिसिट गोल्स हैं, ठीक है, जिनको आपने अचीव करना है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। फर्दर जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए क्या थिंकिंग है आपकी। फर्दर उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी जॉब के ऊपर, क्या चैलेंजेस रिप्रेजेंट किए गए हैं बीइंग इन पर्सनल या फिर एक ग्रुप में रहते हो आपके लिए, ठीक है, किस तरह से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है रिगार्डिंग द थिंग्स, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द कंफ्लिक्ट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एम्प्लॉयज हैं ज्यादा, तो कंफ्लिक्ट होगा, तो कंफ्लिक्ट के रेजोल्यूशन का क्या प्रोसेस है। फर्दर कि एम्प्लॉयज की क्या फीलिंग है रिगार्डिंग जो मैनेजर्स हैं या फिर जो दूसरे सुपीरियर्स हैं या फिर जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, वो हमसे क्या सुनना चाहते हैं विद द डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर कंफ्लिक्ट अगर होता है तो कंफ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग उनकी क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग्स है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। आइडेंटिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने आप को कहां पर देखता हूं, मेरी क्या परसीव्ड वैल्यू है, मैं किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा हूं, ठीक है, उस चीज के रिगार्डिंग एम्प्लॉय की जो फीलिंग है उनके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक क्लाइमेट सर्वे का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिफर हो सकता है,
जिन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो बेसिकली यहाँ पर फीडबैक लेने का मतलब क्या है कि आपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेना है ताकि आप जो भी पॉलिसीज हैं उनको बेटर वे में फाइन ट्यून कर पाएं, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी जॉब से जुड़ पाएं एंड अल्टीमेटली बेटर अपना आउटपुट दे पाएं। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन। सो जब भी हम कोई जॉब को अंडरटेक करते हैं तो हमारा प्राइम मोटिव क्या था कि हमने इससे अपना पैसा कमाना है एंड अपनी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। दैट इज अ प्राइम मोटिव ऑफ अ पर्सन टू टेक अप द जॉब। ठीक है, अंडर विच इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, यानी कि ये हमें किस तरह से मिलता है, जो भी हमें कंपनसेशन मिलती है हम उसे कंपनसेशन कहेंगे, सैलरी हो गई, वेज हो गई। ठीक है, सो दैट इज अ कंपनसेशन, दैट इज बीइंग रिवॉर्डेड टू यू। यानी कि जो आप काम एक इंस्टीट्यूट में, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या है कि आप जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी उनको भी कर रहे हैं, प्लस साथ के साथ आपने अपनी वैल्यू भी ऐड की है, जिसके लिए आपको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाना चाहिए। एंड ये कंपनसेशन किस तरह से होगी, इट शुड बी मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी हद तक जब हम बात करते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन की, तो वो बेसिकली किससे जुड़ी हुई है, दैट इज रिगार्डेड टू बी रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन। तो उसी को रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन से हम ताल्लुक करते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल यहाँ पर कंपनसेशन हमें दी जाती है, लाइक इट कुड बी रिगार्डिंग द एप्रिसिएशन। ठीक है, इट कुड बी रिगार्डिंग द एप्रिसिएशन की जो आपको एप्रिसिएशन दीजिए, बट दैट इज नॉट टू बी टर्म्ड एज, बेसिकली उसे हम कंपनसेशन टर्म नहीं करेंगे। दैट कुड बी रिगार्डिंग कि हम क्या चाहते हैं अपनी जॉब से, ठीक है, वो उस चीज के बारे में। लेकिन कंपनसेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्योरली यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम मॉनेटरी लेवल पर बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से कंपनसेट किया जा रहा है, यानी कि हमें क्या सैलरी मिल रही है, क्या वेजेस मिल रही है, क्या रिम्यूनरेशन है, या फिर हमें किस तरह से बोनसेस मिल रहे हैं, या फिर एड ऑन्स क्या मिल रहे हैं, तो उसके बारे में है ये। ठीक है, सो जो भी रिवॉर्ड हो, जो भी कंपनसेशन हो, इट शुड बी रीजनेबल, ये बिल्कुल सही होना चाहिए एंड जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं आपको पैसा कम मिले, तो अगर वो चीज़ है तो भी आप काम करना कम कर देंगे या फिर अल्टीमेटली काम करना बंद कर देंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से प्रॉपरली कंपनसेट नहीं किया जा रहा। जबकि मेरे जो पीयर्स हैं, यानी कि मेरे जो साथ में काम करने वाले मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे ठीक है कलीग्स हैं, वो इतना काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा कंपनसेशन मिल रही है या फिर उन्हें भी इक्वल कंपनसेशन मिल रही है। सो दैट कुड बी द रीज़न। ठीक है, सो ये रीजनेबल होनी चाहिए, जो भी कंपनसेशन है इट शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल, यानी कि जॉब को जस्टिफाई करती हो, जो आप काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करती हो। अब एक इंजीनियर को हायर किया जाए एंड इंजीनियर को जो कंपनसेशन है वो 10,000 रुपये महीने की दी जाए, सो वो जस्टिफाइबल नहीं रहेगी। सो ये रैंक के हिसाब से एंड स्किल्स के हिसाब से जस्टिफाइबल होनी चाहिए। एंड बेसिक गोल जो एक इंडिविजुअल का रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या रहता है कि उसने सेटिस्फैक्ट्री वेजेस को या फिर कंपनसेशन को अर्न करना है, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर पाए फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फॉर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। ओके, देन इट इज रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। So compensation may be defined as money और remuneration। तो compensation से हमारा क्या मतलब है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी remuneration मिलती है, यानी कि जो भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक वर्क में, अपनी जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, एंड फर्दर जो भी उसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो क्या है, कंपनसेशन है। वो क्या है, कंपनसेशन है। कंपनसेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो कंपनसेशन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इसमें वेजेस हो गए, सैलरी हो गई, बोनस हो गए, कैश अलाउंसेस हो गए, या फिर जो दूसरे बेनिफिट है, मे बी इंश्योरेंस कवर हो सकता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है रिटायरमेंट फंड में, या फिर प्रोविजन फॉर अकोमोडेशन हो सकता है। वो सभी चीजें इसमें शामिल रहती हैं, डेट आर बेसिकली रिलेटेड टू द कंपनसेशन। ये कंपनसेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं रिगार्डिंग की मैनेजरियल लेवल पर जो कंपनसेशन है उसे क्या कहते हैं, डेट इज सेड टू बी रिम्यूनरेशन। सुपरवाइजरी लेवल पर इसे सैलरी कहा जाता है। क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इसे सैलरी कहा जाता है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या फिर हाईली स्किल्ड लेबर के केस में इसे वेजेस कहा जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट नेम्स से इसको जाना जाता है। ठीक है, दैट इज मैनेजरियल लेवल पर रिम्यूनरेशन, सुपरवाइजरी लेवल पर सैलरी, क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सैलरीज, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड लेबर को वेजेस के लिए कहा जाता है। ओके,
तो हमने ये देख लिया कि कंपनसेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय से बेहतर तरीके से काम करवाना है तो कंपनसेशन अगर प्रॉपर होगा तभी वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है, अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएगा। तो कंपनसेशन पॉलिसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो फैक्टर्स यहां पर जिनके बेसिस पर कंपनसेशन को हम डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दीज आर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, तो डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट सिचुएशन और प्रिवेलिंग मार्केट रेट, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स, ठीक है। तो तीन यहाँ पर बेसिस है जिनके बेसिस पर कंपनसेशन को हम डिसाइड करते हैं। कंपनी ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले बात करते हैं, तो ये मेन बेसिस है जिसके ऊपर आप कंपनसेशन को डिटरमाइन करते हैं, मेन बेसिस है जिसके बेसिस पर आप जो कंपनसेशन है उसे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी की क्या अप्रोच है रिगार्डिंग, कई कंपनीज क्या बनना चाहती हैं लाइकवाइज कि वो सबसे ज्यादा पे करें, सबसे ज्यादा पे करेंगे तो बेस्ट ऑफ द टैलेंट जो है वो उनके पास अवेलेबल रहेगा, एंड उनको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। कई कंपनीज का ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कि ये नहीं है कि वो 50 या फिर 100 एम्प्लॉयज को रखेंगे, उनका मोटिव होगा कि वो बेस्ट ऑफ द टैलेंट को रखेंगे एंड वो 10 एम्प्लॉयज के साथ भी वो काम अपना सही से कर पाएंगे, ठीक है। सो वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि उसके पास बेस्ट टैलेंट हो, उसके लिए वो हायर सैलरी यहाँ पर ऑफ कोर्स ऑफर करेगी, एंड साथ के साथ जो कंपनी के में जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है उसे कम रख रही है। एंड फर्दर हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल एज को बनाए रखने के लिए जो कंपनी है वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, बेहतर इंस्टीट्यूट से भी वो रिक्रूटमेंट कर सकती है। एंड जब आप एक बेहतर इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको वहां पर कंपनसेशन भी ज्यादा देना पड़ेगा। लाइकवाइज कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, वहां से अगर रिक्रूटमेंट की जाती है तो कंपनी जो पैकेज दे रही है वो दे रही है 3.5 to 5 लाख, ठीक है। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी आईआईटी है, आईआईटी से यहां पर किया जा रहा है, जब आईआईटी से प्लेसमेंट्स की जा रही है, रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो यहां पर जो पैकेज है डेट इज 10 to 50 लाख, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो यहां पर आईआईटी में ऑलरेडी वो क्रीमी पर्सन है, वो क्या है, ऑलरेडी क्रीमी पर्सन है, यानी कि वो बेहतर स्किल्स के साथ ऑलरेडी इक्विप्ड है, ठीक है। तो वहां पर कंपनी ने अगर रिक्रूट करना है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से तो उसे ज्यादा वहां पर ऑफर करना ही पड़ेगा, ज्यादा कंपनसेशन उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज सेड अबाउट। लेकिन जो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है पे करने की, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या रहता है कि एक एम्प्लॉय मुझे कितना कॉस्ट कर रहा है, एंड मुझे इससे कितना काम लेना है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाती है चीज, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना यहां पर देखेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर मेनली जो पॉलिसी रहती है कि कंपनसेशन किस हिसाब से एम्प्लॉयज को दी जाएगी। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो है दैट इज अ मार्केट सिचुएशन से कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए ना, हर तरह के स्किल्स हर किसी पर्सन में अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ एक स्किल्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, कुछ एक स्किल्स ऐसे हैं जो अनकॉमन है। अब कॉमन को ज्यादा पैसे मिलेंगे या अनकॉमन को पैसा मिलेगा, नेचुरल सी बात है। अनकॉमन जो होगा यानी कि सर्टेन कुछ एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होगा जो बहुत कम अवेलेबल है, जिस तरह के एम्प्लॉयज काफी कम अवेलेबल हैं, जिस तरह की नॉलेज हर किसी के पास नहीं है, वहां पर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको एक लेबर क्लास पर्सन की एग्जांपल देता हूं। तो अगर एक कोई हेल्पर है तो हेल्पर की वेजेस कितनी है, ₹300 है। हेल्पर की वेजेस कितनी है, ₹300 है। लेकिन अगर कोई मार्बल का जो लेबर है, मार्बल की लेबर कर रहा है, तो उसकी जो वेजेस हैं, डेली वेजेस हैं, वो कितनी है, डेट इज अराउंड 700। अब इससे 700 क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस तरह के जो यहाँ पर स्किल्स हैं ये कम अवेलेबल हैं। जबकि हेल्पर तो कोई भी बन सकता है, ये तो कॉमन जॉब है तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो उसके केस में जो कॉस्ट है, जो वेजेस दी जा रही है यहाँ पर, वो कंपनसेशन है वो कम है। जबकि जहां पर आपके पास स्किल्ड लेबर है या फिर आपके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं पर्सन में जो स्कार्सली अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबल हैं, तो वहां पर कंपनसेशन लेवल जो है वो ज्यादा रहता है। सेम चीज यहाँ पर बैंकिंग पर्सनल में देखने को मिलती है, यानी कि कुछ एक जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, चाहे वो फॉरेक्स को लेकर है,
चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी को लेकर है, अब वहां पर उन्हें हायर सैलरी तो देनी बनती है ना, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह के फील्ड के बारे में नॉलेज रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा से कंपनसेट करना पड़ता है फॉर देयर स्किल्स। बाकी डिपेंड करता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो डिमांड एंड सप्लाई यहां पर भी एप्लीकेबल है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मार्केट की डिमांड है, जैसे मैंने आपको कहा कि लेबर की जो डेली वेजेस थी वो 300 है, ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है एंड हेल्पर भी नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि इनकी जो डेली वेजेस है वो 400 भी पहुंच जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अगर किसी को कोई चीज नहीं मिल रही है तो ऑफकोर्स वो पर्सन कहेगा कि मैं तो इतने में आऊंगा, अगर जाना है तो मुझे इतने पैसे दे दो, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। तो दैट कुड ऑल्सो बी बेस्ड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, ठीक है। तो वो मार्केट के जो भी प्रिवेलिंग रेट्स हैं, तो एम्प्लॉय की एक्सपर्टीज के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। दैट वाज रिगार्डिंग द मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, लाइकवाइज कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू पे, या फिर बार्गेनिंग पावर जो रहती है एम्प्लॉयज की, यूनियंस की, एंड अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर जो रहते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स रहते हैं। ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो कंपनसेशन है वो डिपेंड करती है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या रह सकते हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया रिगार्डिंग की वेजेस जो हैं वो कम से कम इतनी रहेंगी, एंड फर्दर हो सकता है कोई प्रोविजन हो कंपनीज एक्ट में, तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोविजन है जो कानून के दायरे में आते हैं, जो किसी एक्ट के दायरे में आते हैं, दैट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, दैट इज कंपनसेशन थ्योरीज। कंपनसेशन की क्या क्या थ्योरीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एडिक्वेसी ऑफ वेजेस। जो कमेटी है फेयर वेजेस के ऊपर, उसने सर्टेन वेजेस कंसेप्ट को यहाँ पर प्रोनाउंस किया है, तो उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मिनिमम वेजेस, यानी कि किसी भी पर्सन को, किसी भी वर्कर को सस्टेन करने के लिए जो कम से कम वेजेस चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो मिनिमम वेजेस किसके साथ टर्म करता है, दैट इज रिगार्डिंग टू लेवल टू सस्टेन द वेजेस। देन इट इज लिविंग वेजेस, यानी कि जो भी सेटिस्फैक्ट्री सोशल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो भी आप कंपनसेशन दे सकते हैं, दैट इज अ लिविंग वेजेस। फेयर वेजेस क्या है, फेयर वेजेस का मतलब है कि मिनिमम वेजेस से ज्यादा है, लेकिन जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो लेवल है दैट इज व्हाट, दैट इज फेयर वेजेस। देन इट इज नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, यानी कि इट इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर। जो भी मिनिमम ह्यूमन नीड्स हैं किसी वर्कर की, उनको कंपनसेट करने के लिए जो वेजेस दी जाती हैं, दैट आर नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। ओके, सो यहाँ पर हमने चार यहाँ पर डेफिनेशंस को कवर किया अंडर द एडुकेशन ऑफ वेजेस विच वर गिवन बाय द कमेटी ऑफ द फेयर वेजेस। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द सोसाइटल कंसिडरेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो जो कंपनसेशन का लेवल है वो थ्योरेटिकल कहाँ से डिसाइड होता है, जो भी सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन होती है ना, वहां से डिसाइड होता है। तो जो जहां पर एक इकोनॉमी फ्री है, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी बीच में लेना देना नहीं है इकोनॉमी के बीच में, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो वेज एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है, वो वेज एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है। जो मार्केट फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कंपनसेशन लेवल क्या होगा, वो डिटरमाइन करते हैं कि कंपनसेशन लेवल क्या होगा। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ एक जिम्मेदारी तो बनती है, लाइकवाइज कि जो भी वर्क फोर्स है ये ना हो ना कि उसके एक्सप्लॉयटेशन हो। लाइकवाइज एक इंजीनियर से या फिर एक पर्सन से, एक प्रोफेशनल से जॉब करवाई गई एंड उसे जो पैसे दिए गए, उसको जो कंपनसेशन दी गई, डेट वाज इररेशनली वेरी लो। तो ऐसा ना हो कि उसको एक्सप्लॉयट किया जाए, ये ना हो उसे एक्सप्लॉयट किया जाए। तो यहां पर गवर्नमेंट इस चीज के लिए बाउंड है, गवर्नमेंट इस चीज के लिए बाउंड है। एंड पर्टिकुलरली ये जो बाउंडेशन है दैट इज रिगार्डिंग द लेबर क्लास, जहां पर सर्विस सेक्टर है, जहां पर बेसिकली जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, जिनके पास सुनवाई करने के लिए कोई नहीं आएगा। जो इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, वो अपनी बात को खुद भी आगे जाके रख सकते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत से चैनल्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जहां पर सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट सामने आती है ताकि उनको एक्सप्लॉयट ना किया जा सके। लाइकवाइज मिनिमम लेबर वेजेस रखते हैं गवर्नमेंट, सेट कर दी है, ठीक है, कि आपको कम से कम इतना पैसा तो कंपनसेटरी रूप में आपको देना पड़ेगा, दैट इज अंडर द लेबर एक्ट। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से जो एक्ट हैं उनको इनेक्ट किया है, लाइकवाइज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट्स जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो वेजेस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर मिलती रहें, रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर मिलती रहें। फर्दर जो भी अनऑथराइज डिडक्शन अगर कोई की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा वेजेस में से, तो वो उन्हें रोका जाए। फर्दर
एक मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस को डिफाइन किया कुछ एक इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डायरेक्ट वे में पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं रखा, लेकिन मिनिमम जो लेवल था उसे सेट कर दिया कि कम से कम आपको इतना देना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें सेट कर दिया है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सोसाइटल कंसिडरेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इट। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब के लिए कंपनसेशन लेवल को सेट किस तरह से किया जाए, दैट कैन बी डन थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन। जब आप जानते होंगे, अब एक साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन करेंगे। साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टास्क इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्किल चाहिए, ठीक है। फर्दर हम बात करें रिगार्डिंग द जॉब इवैल्यूएशन के बारे में लाइकवाइज कि इसमें कौन कौन सी टास्क इन्वॉल्व हैं, किस तरह से आपको स्किल्ड पर्सन इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं इन द जॉब इवैल्यूएशन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स टू डिटरमिन द लेवल ऑफ कंपनसेशन पैकेज। यानी कि अगर आप कंपनसेशन पैकेज को निकालना चाहते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है जिसके थ्रू आप ये देख पाएंगे कि कंपनसेशन जो है वो किस हिसाब से की जानी चाहिए। तो साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन विल इंश्योर पैरिटी ऑफ कंपनसेशन लेवल्स फॉर सिमिलर जॉब। साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन कहता है कि आप बेसिकली जॉब को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप एक ही तरह की जॉब पैटर्न्स को देख रहे हैं तो वहां पर आप एक पैरिटी रख पाएंगे ना। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक जो जॉब है उसमें भी सेम ही टास्क इन्वॉल्व है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें कंपनसेशन जो है काफी कम है, दूसरे में कंपनसेशन जो है वो ज्यादा दी जा रही है, ठीक है। तो साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू आप उस चीज को खत्म कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली जो भी सिमिलर जॉब्स हैं वहां पर सिमिलर कंपनसेशन ऑलमोस्ट दे सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग जॉब्स इन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जब आप जॉब इवैल्यूएशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी का कितना लेवल है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कंपनसेशन जो है अकॉर्डिंगली उसे लिंक कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब इवैल्यूएशन का? पहली चीज है कि रिगार्डिंग कि आपने कंपनसेशन रेट को डिटरमाइन करना है। फर्दर जो भी आपने पेमेंट है, कंपनसेशन है, उसे जॉब के साथ आपने लिंक करना है। फर्दर जो भी डिफरेंशियल फैक्टर्स हैं, यानी कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, एफर्ट्स क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपने डिफरेंशियल्स अलाउ करने हैं। डिफरेंशियल्स अलाउ करने का मतलब रहता है ना कि एक जॉब है, अब ये ऑफिस जॉब है, ठीक है, एक ऑफिस जॉब है, इसमें स्किल्स वही रिक्वायर्ड है। यानी कि यहां पर हम एक इलेक्ट्रिकल पर्सन की यहां पर एग्जांपल लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से रिलेटेड एक पर्सन है जो यहाँ पर जॉब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो इनसाइड द ऑफिस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर स्किल्स तो इसके पास भी है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली कम है। रिस्क लेवल जो है वो कम है, ठीक है। वहीं पर एक इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल है जो लाइनमैन के बतौर काम कर रहा है, ठीक है, जो लाइनमैन के बतौर काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो रिस्क लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है। जो रिस्क लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है। तो बेसिकली अब रिस्क ये वाले पर्सन को, चाहे इसके पास भी स्किल्स जो है वो सेम है, ठीक है, इसके पास भी स्किल्स सेम है, तो कंपनसेशन जो होगी किसके पास ज़्यादा दी जानी चाहिए, कंपनसेशन जहाँ पर जो रिस्क है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू भी जो डिफरेंट डिफरेंशियल्स हैं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या एफर्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या हैज़ार्ड्स हैं, तो उनके हिसाब से भी हम यहाँ पर कंपनसेशन अलाउ कर सकते हैं। फर्दर इसके बेस पर आप एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंपनसेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहती हैं, लाइकवाइज जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, फर्दर जॉब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें जॉब एनालिसिस है, ये सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, ठीक है। सो जॉब इवैल्यूएशन जो है, जैसे कि हमने पहले भी यूनिट्स में पढ़ा था रिगार्डिंग की जो जॉब इवैल्यूएशन है ये मैन पावर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन द थिंग इज कि जब आपने जॉब्स को इवैल्यूएट कर लिया, जब आपने जॉब्स को इवैल्यूएट कर लिया तो उसके बाद आप जॉब्स को क्या करते हैं, रैंक करते हैं, ठीक है। आप इक्वालिटी के हिसाब से, वैल्यू एडिशन के हिसाब से उनको रैंकिंग कर देते हैं। लाइकवाइज आपने पहले इवैल्यूएट किया सभी जॉब्स को, उसके बाद आप उन सभी को रैंक कर लेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिड जॉब है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड जॉब है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जितने भी जॉब्स हैं उन सभी को रैंक कर लेते हैं एंड किसके ऊपर, इक्वालिटी के बेस पर, ठीक है, उनकी इक्वालिटी के बेस पर, फर्दर जो वैल्यू एडिशन है उसके बेस पर। देन उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स में, फर्दर उनको क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स में, स्किल इंटेंसिटी के हिसाब से, डिफिकल्टी के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, या फिर जो एक्सपीरियंस चाहिए उनके लिए उनके हिसाब से। तो फर्दर इनको ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है।
आपने रैंकिंग कर दिया इक्वालिटी के हिसाब से, वैलिडेशन के हिसाब से, फर्दर उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब जब आपने जॉब्स को एक बार रैंक कर दिया है तो फर्दर जो लेवल ऑफ पे है हर एक जॉब के लिए क्लासिफाई करना आसान बन जाता है। ओके, then it is regarding the rewards linked to performance then it is regarding the rewards linked to performance। जो compensation दी जा सकती है that could be fixed, that could be totally variable और that could be mixed। तो सबसे पहले बात करते हैं regarding the fixed level compensation। fixed level compensation क्या है? likewise बैंकिंग सेक्टर में है अभी के लिए। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, जैसे कोई ऑफिसर क्लास से है, ऑफिसर स्केल 1 से है, तो यहां पर एक फिक्स्ड लेवल दे दिया। इसी तरह से अगर कोई क्लैरिकल लेवल में है तो वहां पर अलग से एक लेवल बना दिया, फिक्स्ड लेवल बना दिया। यानी कि जो भी इंप्लॉयज होंगे जो इन डिफरेंट कैडर्स में बिलोंग करते हैं उनको उनके हिसाब से कंपनसेशन दी जाएगी, कैडर के हिसाब से उनको कंपनसेशन दी जाएगी एंड वो फिक्स्ड रहेगी। किसी को यहाँ पर इस चीज के आधार पर तो नहीं कहा जाएगा ना कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है तो उसकी सैलरी जो है वो ज्यादा होगी, इसने परफॉर्म कम किया तो इसकी सैलरी जो है वो कम होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो नहीं रखते हैं यहाँ पर। यानी कि एक फिक्स्ड लेवल बना दिया जो एक यूनियंस ने यहाँ पर बायपार्टाइट सेटलमेंट के थ्रू या फिर किसी और वे के थ्रू यहाँ पर आपस में डिसाइड किया। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो उन्हें कम से कम इतना कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो कंपनसेशन दी जा रही है ये परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है। कोई पर्सन चाहे काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा उसे उतना कंपनसेशन मिल जाएगा। तो फिक्स्ड लेवल ऑफ कंपनसेशन मींस दैट जॉब्स बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब को एनालाइज किया जाता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है एंड जो भी वेरियस लेवल्स हैं जॉब्स के उनके हिसाब से इक्वली जो एम्प्लॉयज है उनको यहाँ पर पेमेंट मिलती है एंड एश्योर्ड पेमेंट मिलती है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर नहीं देखा जाता है। एंड फर्दर जब अपने परफॉर्मेंस को नहीं देखा तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो एम्प्लॉय होंगे वो अपने पोटेंशियल से बिलो काम करेंगे, अपने पोटेंशियल से कम काम करेंगे एंड फिक्स्ड कंपनसेशन लेवल में प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो जो प्रोडक्शन होती है, जो पोटेंशियल है वो यहां पर कम यूटिलाइज होता है एज पर द स्टडीज एंड इट सफर्स फ्रॉम क्रिएटिंग अ लो लेवल ऑफ मोटिवेशन लेवल जो है वो भी कम रहता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो फिक्स लेवल में हमने क्या पढ़ा कि आपने फिक्स कर दिया एक लेवल के ऊपर कंपनसेशन का एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो जो कंपनसेशन है वो पे की जाने वाली है। वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन में क्या, टोटल वेरिएबल में क्या है कि इसने वो वाला जो ड्रॉबैक था कि फिक्स लेवल का जो कंपनसेशन का ड्रॉबैक था लाइकवाइज कि परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है उसे तो यहाँ पर रिमूव कर दिया। लेकिन जो वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही एम्प्लॉय के साथ जो कंपनसेशन उसको दी जानी है उसे डिसाइड किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जहां पर जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसने 100 पीसेस की डेली बेसिस पर इसने प्रोडक्शन करनी है, सो हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमम लेवल करते हैं। अब यहाँ पर सेम क्वालिटी के साथ अगर ये 120 पीसेस को कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर इसने अपनी परफॉर्मेंस को बेसिकली इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन के आधार पर यहाँ पर इस एम्प्लॉय को यहाँ पर ज्यादा कंपनसेशन मिलनी चाहिए, वहां पर तो सेट बैठती है चीज। लेकिन जहां पर अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर के बारे में, अब सर्विस सेक्टर में आप किस हिसाब से मापेंगे या इस तरह से मेजर करेंगे कि इस पर्सन को पेमेंट जो है ज्यादा मिलनी चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा है। फर्दर दिक्कत क्या रहती है सर्विस सेक्टर में रिगार्डिंग की अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है तो वो हायर लेवल पर रहेगा। कहने का मतलब है कि वहां पर कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो अगर हायर अथॉरिटी कहे कि पर्सन ए जो कि इसका क्लोजर वन है, ठीक है, उसके बारे में चाहे इसने बेहतर काम किया चाहे नहीं किया, ये कह दे कि इसने बेहतर काम किया है, एंड बी जो कि इसके क्लोजर वन नहीं है, चाहे इसने बेहतर काम ही किया है, इसको वो कह दे कि इसने बेहतर काम नहीं किया, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनका जो एक ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि कुछ एक ओकेजन्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। लाइकवाइज वर्क सिचुएशन हो सकता है, मे बी हो सकता है पावर डाउन हो जिसके कारण वो परफॉर्म ही ना कर पाए, प्रोडक्टिविटी कर ही ना पाए। ठीक है, तो वहां पर भी दिक्कत रह सकती है। एंड फर्दर ड्रॉबैक क्या है रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द सर्विस इंडस्ट्री, दैट इज द सेकंड ड्रॉबैक।
in the variable level of compensation. Third जो level of compensation है, that is mixed level of compensation, mixed compensation level. तो mixed compensation level में क्या है बेसिकली कि आप जो compensation कर रहे हैं उसमें एक fixed part भी रहेगा, जो एक फिक्स्ड पार्ट भी रहेगा, चाहे परफॉर्मिंग है चाहे नॉन परफॉर्मिंग है, उन सभी को वो पे किया जाएगा. एंड फर्दर जो रहेगा दैट वुड बी अ वेरिएबल पार्ट, दैट वुड बी अ वेरिएबल पार्ट, जो यहां पर कंपनसेशन दी जाएगी किसके आधार पर, जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर. सो इट एश्योर्स ऑफ फिक्स्ड लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड प्रपोजेस एडिशनल कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड इट इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं लगभग सभी में इनको फॉलो किया जाता है, लगभग सभी में इनको फॉलो किया जाता है. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. तो काइंडली सभी इसमें पार्टिसिपेट करें क्वेश्चंस में. तो जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा उसके बाद आप काइंडली जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखते हुए साथ के साथ जो ऑप्शन है उसे जरूर यहां पर मैसेज करें, ताकि हम एक आइडिया ले सकें कि आपको आज का जो ये क्लास रहा है इसमें कितना समझ में रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट मींस टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज. Which of the following is the most popular and prevalent means to gather feedback from the employees? General survey, climate survey, direct feedback, direct survey. तो जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिए, जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिए. Which of the following is the most popular and prevalent means to gather feedback from the employees? Employees से feedback को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है एंड सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट मीन्स है वो क्या है? जनरल सर्वे है, क्लाइमेट सर्वे है, डायरेक्ट फीडबैक है, या फिर डायरेक्ट सर्वे है? तो इट इज ऑप्शन बी हियर, दैट इज अ क्लाइमेट सर्वे, दैट इज अ क्लाइमेट सर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज which of the following is covered by a typical climate survey? Which of the following is covered by a typical climate survey? Structure, responsibility, reward only, risk, warmth, support only, A and B, and D it says only B. D it says only B. Question number 2 it says, kindly please write question number along with it so that we are able to understand you are trying to answer which question. Which of the following is covered by a typical climate survey? तो typical climate survey में हमने 9 फैक्टर्स पढ़े थे, typical climate survey में. that was structure, responsibility, reward, risk, warmth, support, standards, conflict and identity. Okay, so question 2 it's option C is the right answer. Option C is the right answer here. Now let's move to the next one, which says the term compensation stands for which of the following? The term compensation stands for which of the following? Money or remuneration received for performance of work, kinds of benefits provided by the organization, money received for performance of work plus kind of benefits provided by the organization, money or remuneration received for performance of work plus the kind of benefits provided by the organization. So what will be the appropriately the answer over here? So term compensation जो है that stands for money or remuneration received for performance of work plus the kinds of benefits provided by the organization. So option D is the right answer here. Option D is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन says compensation include which of the following? compensation में कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे इंक्लूड रहती है? wages और salaries और bonus, cash allowances, benefits such as accident or health insurance, employer contribution to retirement funds, etc. तो compensation में कौन सी चीजें कवर्ड रहती हैं उनके बारे में बताना है. compensation में कौन सी चीजें कवर रहती हैं? तो बेसिक सैलरी और वेजेस तो कवर रहती हैं, साथ के साथ जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, चाहे बोनस है चाहे अलाउंसेस हैं, ठीक है, या फिर कोई इंश्योरेंस कवर है या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है टू द रिटायरमेंट फंड्स, ऑल आर कवर्ड इन दिस, ऑल आर कवर्ड इन दिस.
So option D will be the right answer here. Option D will be the right answer here. Next question, it says a reference to type of compensation in which of the following is not matched properly. तो टाइप ऑफ कंपनसेशन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन से जो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है. तो टॉप और मिडल मैनेजमेंट में हम इसे सैलरी कहते हैं, सुपरवाइजर्स में भी सैलरी कहते हैं, क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में भी सैलरी कहते हैं, एंड फॉर द अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड स्टाफ में हम इन्हें वेजेस कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, हमने ये बताना है कि कौन सा जो टाइप ऑफ कंपनसेशन है दैट इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली. इट इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली. टॉप और मिडल मैनेजमेंट में क्या कहा जाता है? इट इज सेट टू बी remuneration. It is said to be remuneration. So option A is placed wrongly here. So that would be the right answer. Next question says compensation can be paid to an individual for his contribution, to a team for certain measurable results, to a group for certain measurable results, all of the above. So compensation किन्हें पे किया जा सकता है? क्या सिर्फ इंडिविजुअल को पे किया जा सकता है या फिर ग्रुप या फिर टीम को भी पे किया जा सकता है फॉर measurable results? It is option D here. That is all of the above. Compensation can be paid to an individual or a team for certain measurable results or to a group for certain measurable results. Next question says, what are the bases for determination of compensation policy? What are the bases for determination of compensation policy? Company objectives, market situation or prevailing market, profitability position of the company, external pressure. So basis of determination of compensation policy. compensation policy को determine के लिए कौन से basis हैं? कंपनी के objective, market situation, profitability position of the company, external pressures. Question number 7 it is. जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7, कंपनसेशन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से बेसिस हैं? कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट सिचुएशन और प्रिवेलिंग मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल प्रेशर्स. ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ कंपनी है, दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन पॉलिसी. So 1, 2, 4 are correct. That is company objectives and market situation or prevailing market and external pressures. Basically, it would be internal and external pressures. Internal and external pressures. Okay. So option B will be the right answer here. Next question says the compensation should be adequate, which takes into account the following. तो compensation जो है वो adequate होनी चाहिए, which takes into account the following: minimum wages, living wages, fair wages, need based minimum wages. तो compensation जो है that should be adequate and उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? जो 4 डेफिनेशन थी जो फेयर कमेटी प्रैक्टिसेस के द्वारा यहाँ पर दी गई थी, कमेटी ऑन फेयर वेजेस के द्वारा दी गई थी, that were minimum wages, living wages, फेयर वेजेस एंड नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस. तो चारों ही यहां पर शामिल की गई थी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच. मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है? वेजेस लेवल टू सस्टेन द वर्कर. इट इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. ऑप्शन बी सेज लिविंग वेजेस considers the aspect of satisfaction of social needs and insurance cover. तो लिविंग वेजेस किससे रिलेटेड है? जहां पर सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं. ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. फेयर वेजेस मीन्स द वेजेस बिटवीन द मिनिमम एंड द वन विच कुड बी डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे. फेयर वेजेस जो है दैट इज अ लेवल बिटवीन जो मिनिमम वेजेस है एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे. दोनों के बीच में जो लेवल है दैट इज अ फेयर वेजेस. सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट. तो हमने ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है. सो ऑप्शन डी इट सेज नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, द नेगोशिएटेड वेजेस, दैट डज नॉट मैचेस. ऑप्शन डी जो है वो यहां पर मैच नहीं कर रहा है. जो नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस है दैट आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर.
तो ऑप्शन डी जो है यहां पर, दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. Next, it says how the government of India ensures a bare minimum level of compensation to the workers. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इंश्योर करती है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए. मिनिमम लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए. बाय पासिंग वेरियस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन, थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स, थ्रू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 10 इट इज. सो डिफरेंट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन को पास किया जाता है एंड फर्दर जो गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स को यूज करते हुए, यानी कि जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हुए एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है वो वर्कर्स को दी जाए. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म जॉब इवेल्युएशन. जॉब इवेल्युएशन टर्म का क्या मीनिंग है? इट इज अ मेथड फॉर फिक्सिंग द कंपनसेशन. इट इज मेथड फॉर अप्रेजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ वन job in comparison to other jobs in the organization. It is method of appraising the value of worth of one job in comparison to other jobs in other organizations. It is method for fix the compensation and for appraising the value or worth of one job in comparison. So what would be the answer over here? Question number 11 here. तो टर्म जॉब इवेल्यूएशन का मतलब क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ अप्रेजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ वन जॉब इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेम ऑर्गेनाइजेशन में हम जब बात करते हैं एंड यहां पर फिक्सिंग द कंपनसेशन नहीं रहता है. इट इज नॉट रिगार्डिंग फिक्सिंग द कंपनसेशन, इट इज रिगार्डिंग द अप्रेजल. It is regarding the appraising the value or worth. It is not regarding the fixing the compensation. Okay. So option B is appropriate and would be the right answer. Option B would be the right answer here. Next question says which of the following is the objective of job evaluation? To determine the compensation rates, to link pay with the requirement of job, to provide for pay differentials taking into account skills, efforts, hazards required in each job, to establish a compensation structure, to consider for promotion to next scale. तो हमने बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब इवेल्युएशन का. जॉब इवेल्युएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताना है. यहां पर कंपनसेशन रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल सही है. टू लिंक पे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, यानी कि पे को जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की उसके साथ लिंक करने के लिए, डेट इज ऑल्सो ट्रू. टू प्रोवाइड फॉर पे डिफरेंशियल, यानी कि जो भी डिफरेंशियल्स हैं, लाइकवाइज स्किल्स हो सकते हैं, एक्सपर्टीज हो सकती है, एफर्ट्स हो सकते हैं, हैजार्ड्स हो सकते हैं, जो किसी जॉब में चाहिए उसके लिए डिफरेंशियल प्रोवाइड करने के लिए, डेट इज ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन 4 इट सेज टू एस्टैब्लिश अ कंपनसेशन स्ट्रक्चर, एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए, डेट्स ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन 5 इट सेज टू कंसीडर द प्रमोशन फॉर नेक्स्ट लेवल, that is not related at all. That is not related at all. So 1 to 4 are correct. 1 to 4 are correct. 1 2 3 4 are correct. Fifth one is wrong here. So question number 12, the answer will be option B here. Option B will be the answer here. Next question says when the reward is linked to performance, जब रिवॉर्ड को लिंक किया जाता है परफॉर्मेंस के साथ, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो ये 3 तरह का हो सकता है. फिक्स्ड, टोटली वेरिएबल एंड मिक्स्ड, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड मिक्स्ड, फिक्स्ड, पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड, फिक्स्ड, ग्रेजुएटेड एंड वेरिएबल. सो क्वेश्चन 13, जब हम रिवॉर्ड को लिंक करते हैं परफॉर्मेंस के साथ, so that could be of 3 types, that is fixed, next it is totally variable, and third one it is a mixed. totally variable, variable नहीं totally variable, 3 टाइप्स कौन सी हैं?
फिक्स्ड है, टोटली वेरिएबल है एंड मिक्स्ड है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Last question for today, it says find out the incorrect statement. Find out the incorrect statement. The remuneration to managerial position is referred to as salary. Is it true or false? हमें incorrect statement को बताना है। तो जो भी remuneration दी जाती है managerial position पर, that is known as remuneration. उसे remuneration ही कहा जाता है। That is said to be remuneration. So option A जो है that is incorrect. That is the right answer. Option A is the right answer. Option B it says where the reward is linked to performance, it helps in improvement of motivation level of the employee. जहां पर जो रिवॉर्ड है वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड रहता है, वहां पर वो मोटिवेशन जो लेवल है एम्प्लॉयज को उसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है। दैट इज ट्रू। ऑप्शन सी इट सेज यूनिफॉर्म वेजेस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। जो यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर है वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? डेट इज फॉल्स, क्योंकि वहां पर जो पोटेंशियल से कम हम काम करते हैं। ऑप्शन सी इट इज ट्रू। ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT and start preparing for the same। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.